अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल कैरियर सिस्टम्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग। सो इट विल बी कवरिंग CLO1 एंड CLO2 और ये आपकी बुक सेक्शन 7.7 एंड 7.8 है। So the contents of today's lecture are as follows. First we will discuss modulation, then we will move on to digital modulation. After that we will discuss different types of digital modulation schemes like ASK, FSK, PSK and DPSK. And after that we will discuss multiplexing in terms of time division multiplexing and frequency division multiplexing. So now we know that modulation can be divided into two types. The first one is analog modulation and the second is digital modulation. So far we have studied analog modulation in chapter 4 and chapter 5, where we have seen amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. So now we will be studying digital modulation techniques, which includes amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. So let's start with the digital carrier system. So far we have seen that our discussion was mainly related to baseband digital communication systems, where signals are transmitted without shift in frequencies, that is without modulation. Means we were not doing any kind of modulation, we were not shifting frequencies. So such kind of communication systems where there is no modulation, these systems are known as baseband communication system. But now we are moving towards modulation, and now so it means now we will be studying band pass digital communication systems. Baseband digital communication is suitable over pair of wires, coaxial cable or optical fiber. It means we are basically using wired medium to transmit baseband digital communication, because since we are not performing any kind of modulation, so it is not possible to transmit these signals over large distances. However, for radio link and satellite communication, modulation is inevitable. It is obvious that because without modulation, we can't transmit our signals over wireless channels or satellite communication. So now if we have to so we have basically different types of modulation. The first one is amplitude modulation and the second one is angle modulation. So if we are changing amplitude of the carrier in accordance to the modulating signal, then it will be said amplitude shift keying. So now we are defining these types in terms of digital communication. So ASK क्या है, बेसिकली वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टाइप है. मतलब ASK में आप क्या कर रहे हो कि आपने एम्पलीट्यूड जो है कैरियर का उसको चेंज कर देना है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. और जब हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो हेयर वी विल बी वेरिंग फ्रीक्वेंसी और फेज इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. एंड एंगल मॉड्यूलेशन हैज़ टाइप्स लाइक frequency shift keying and phase shift keying. So these are basically different types of digital communication systems. Here we have ASK, which is amplitude modulation, and frequency shift keying and phase shift keying, which comes under the heading of angle modulation. So let's start our discussion with amplitude shift keying, which is basically amplitude modulation. It is digital to analog conversion technique. How? देखिए जी, डेफिनेशन क्या है. बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. जैसी डेफिनेशन हमने एम्पलीट्यूड एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखी थी, इट इज़ सेम डेफिनेशन कि आपने कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर देना है, और किसके रिस्पेक्ट से चेंज करना है, आपने मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड भी चेंज कर देना है. तो जब इसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हेयर वी विल हैव m of t, which is our message signal, and then we have carrier, which is cos omega ct. And when these two signals will pass through product modulator, then we get ASK signal, which is basically simple multiplication of m of t and c of t. अच्छा जी, अब अगर हम ASK वेव फॉर्म की बात करें तो if we have m of t, now keep this thing in mind that now our m of t is not an analog signal, but it is basically a digital data. So if I am saying that I have digital data which is 0 1 0 1 0 1 0, then I can say that the waveform for m of t will be like this. Here I am assigning 0
wave 0 bit to 0 voltage to 0 bit and then plus volts to for 1 bit. So इस तरह से हमने देखा कि 0 को आपने 0 असाइन कर दिया है, 0 और 1 को आपने प्लस वोल्ट असाइन कर दिया है. सी ऑफ टी जो है आपका कैरियर आपका जो है एनालॉग ही रहेगा. अब जब ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी दैट कि जहाँ पे 0 था जब वो इस वेव फॉर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 था जो कि आपका बेसिकली 1 बिट थी वो जब इस वेव फॉर्म से मल्टीप्लाई होगी तो यू विल गेट कैरियर सिग्नल एंड देन अगेन 0 एंड देन here 1 will be multiplying with this signal and you are getting this carrier signal for this portion then again 0 1 0. सो अब आप ये जो मैंने पहले बात की थी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, तो बेसिकली आप देखेंगे एम ऑफ टी क्या है, वो एक आपका डिजिटल सीक्वेंस है, लेकिन ए एस के सिग्नल क्या आ रहा है, वो एक एनालॉग सिग्नल आ रहा है. तो बेसिकली ए एस के में आप डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द वे हाउ वी आर डूइंग ए एस के मॉड्यूलेशन. अब हम एज अ डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज. अच्छा, अब आपका जो डाटा था वो बाइनरी फॉर्म में था, उसमें 0 और 1 आ रहे थे, दो फॉर्म्स मतलब जो डाटा था उसकी दो फॉर्म्स थी, इधर बिट 0 थी या बिट 1 थी. तो इसको आप बाइनरी ए एस के भी कह सकते हैं, और उसके अलावा ऑन ऑफ किंग भी ए एस के को कहा जाता है. ऑन ऑफ क्यों? क्योंकि आपका जो ए एस के सिग्नल है वो समटाइम्स ऑन है समटाइम्स ऑफ है, तो इस वजह से उसको ऑन ऑफ किंग भी कहते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट डी मॉड्यूलेशन ऑफ ए एस के, देन ऑन द सेम लाइन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डी मॉड्यूलेशन. द फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस and the second one is non-synchronous. सिंक्रोनस को आप कोहेरेंट डिटेक्शन भी कह सकते हैं और नॉन सिंक्रोनस को आप नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन भी कह सकते हैं. सिंक्रोनस डिटेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप रिसीवर साइड पे लोकल ऑसिलेटर या लोकल कैरियर जनरेट करवाते हैं, और जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप रिसीव कर रहे होते हैं उसको इस कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाता है और उसके बाद एलपीएफ से पास करवाते हैं. मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन में बेसिकली लोकली एक कैरियर जनरेट करवा रहे हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा होगा विच इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइड वर्जन ऑफ एम ऑफ टी एंड कॉज ओमेगा सी टी. यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस विद योर कैरियर विच इज़ कॉज ओमेगा सी टी, एंड दिस कैरियर इज़ इन सिंक्रोनस with the carrier which was generated at the transmitter side. So this cause will be multiplying with this cause, and here at the output we will be getting m of t into cos square omega ct. अब आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स आएंगी. एलपीएफ विल ब्लॉक दोज हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स एंड एट द आउटपुट वी विल बी रिट्रीविंग आवर मैसेज सिग्नल. अब इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जी दिस सिंक्रोनस रीमॉड्यूलेशन इज़ क्वाइट एफिशिएंट इन नेचर, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ लोकल ऑसिलेटर. बिकॉज हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये जो लोकल ऑसिलेटर जो भी कैरियर जनरेट कर रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो इतनी एक्यूरेसी जो है वो हमारी सर्किट की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देती है. दूसरी तरफ वी हैव नॉन सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन. इन नॉन सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन वी डोंट नीड टू जनरेट एनी कैरियर एट द रिसीवर साइड एंड वी विल बी परफॉर्मिंग एनवेलप डिटेक्शन. So the modulated signal will pass through envelope detector and then at the output we will get m of t. So the advantage of this technique is it has low cost because we are not using any kind of oscillator, but the disadvantage is its performance is poor with low SNR. I mean, as compared to synchronous demodulation, asynchronous demodulation or non-synchronous demodulation has a poor performance in terms of SNR. तो जो एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल. मतलब हम एएम देखा है हमने, तो एएम रेडियो, तो यहाँ पे आपके पास ब्रॉडकास्ट कर सकते हो सिग्नल्स को. उसके अलावा इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फॉर लेज़र इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, क्योंकि वहाँ पे आप डिफरेंट जो एलईडीज़ हैं या डिफरेंट लाइट्स हैं, कलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एम्पलीट्यूड शो करवाते हैं. तो यहाँ पे हम लेज़र इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं. अब दूसरी टेक्निक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग.
इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल। अगेन पुरानी बात है कि जो हमारे पास डिजिटल डाटा था हमने उसको मॉड्यूलेशन के बाद एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। और डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। मतलब अब आपने कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और ये फ्रीक्वेंसी चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल पे डिपेंड कर रहा होगा। अब अगर हम एफ के वेव फॉर्म की बात करें, हमारे पास ये डिजिटल डाटा था और यहाँ पे एम ऑफ टी को हम जब शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म्स तो हमें ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी जहाँ पे 1 को प्लस वोल्ट के साथ प्लस वी के साथ शो कराया जाएगा और 0 को 0 के साथ शो कराया जाएगा। अब here we have basically two frequencies. The first one is less frequency and the second one is highest frequency. So यहाँ पे कैरियर जो है वो दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज आप देख रहे हो कि आपके पास मिल रही है, FC0 है और FC1 है। अब FC1 जो है, जो हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली यूज़ होगी बिट 1 के लिए और जो लो फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ होगी बिट 0 के लिए। तो बेसिकली जब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपकी 1 बिट आ रही है और जब लो फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी 0 बिट है। तो इस तरह से हमने एफएस की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वो अप्लाई किया है कि हमने दो बिट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज़ की हैं। अब जब इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारा जो मैसेज सिग्नल था m0 ऑफ टी वो पहले कॉस ओमेगा C0 और टी से मल्टीप्लाई होगा। आप कह सकते हो कि ये कैरियर विद फ्रीक्वेंसी 1 है और उसके बाद m1 ऑफ टी कॉस ओमेगा C1 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा इन m ऑफ टी फॉर 1 FC1 एंड फॉर 0 FC0। तो जब आपका 1 मतलब नोटेशन आएगी तो वो शो करिए कि ये आपकी बिट 0 है, जब नॉट या 0 की नोटेशन आएगी तो ये शो करिए कि ये बिट 0 है। सच FSK इज़ ऑल्सो नोन एज BFSK, दैट इज़ बाइनरी FSK। इसको भी हम बाइनरी FSK कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ कर रहे हैं और उन दो फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से 1 और 0 को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। We can have multi-level FSK when more than two frequencies are used to represent 1 and 0। मतलब हम 1 और 0 को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ दो फ्रीक्वेंसीज यूज़ की हैं, इस वजह से बाइनरी FSK का है, लेकिन अगर हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे तो हम उसे मल्टी लेवल FSK कहेंगे। अब एफएस के मॉड्यूलेशन की बात करें तो m0 ऑफ टी जो है वो पहले फ्रीक्वेंसी 1 के साथ या ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा और m1 ऑफ टी जो है वो ओमेगा 1 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा एफएस के सिग्नल आ जाएगा जिसमें m0 ऑफ टी इंटू कॉज ओमेगा C0 ऑफ टी है और m1 ऑफ टी इंटू कॉज ओमेगा C1 ऑफ टी है। तो ये जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बेसिकली एफएस के मॉड्यूलेशन बन जाएगी। एफएस के डीमॉड्यूलेशन जो है वो अगेन कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट है, मतलब सिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस इन नेचर है। कोहेरेंट की बात करें तो कोहेरेंट में अगेन वी आर जनरेटिंग लोकल कैरियर्स, मतलब आपके पास ये लोकल ऑसिलेटर है, एफएस के सिग्नल आएगा दो स्ट्रीम्स में चला जाएगा। अपर स्ट्रीम जो है उसके पास फ्रीक्वेंसी 1 का कैरियर होगा और लोअर स्ट्रीम पे आप फ्रीक्वेंसी 2 का कैरियर जो है उसको जनरेट करवाओगे। अब जब मॉड्यूलेशन होगी यहाँ पे कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज बनेंगी जिसको LPF ब्लॉक कर लेगा और सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज होगी जिनको नीचे वाला LPF ब्लॉक कर लेगा। इसके बाद आपके 1s और 0s की इन्फो है, मतलब ये सर्किट ब्लॉक या ओपन होता जाएगा और फिर आपने कंपैरेटर से दोनों को कंपेयर कर देना और आपके पास डिजिटल डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब एडवांटेज ये है कि दिस इज सिंपल और डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है अगेन बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ m ऑफ टी। अच्छा, अब अगर हम बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ कैरियर्स, मतलब यहाँ पे आपको कैरियर्स जनरेट करवाने पड़े हैं जिसकी वजह से हमारे सर्किट की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नॉन कोहेरेंट की बात करें तो नॉन कोहेरेंट में आपने सिंपल इसको सबसे पहले बैंड पास फिल्टर में से पास करना है और उसके बाद आपने एनवेलप डिटेक्टर में से पास करना है। अब एनवेलप डिटेक्शन करेगा और उसके बाद वो आपको कंपैरेटर के बाद आपको m ऑफ टी की आउटपुट दे देगा। और एडवांटेज क्या है, ये एक जो है लो कॉस्ट
मतलब ये आपका इसका एडवांटेज नॉन सिंक्रोनस का या नॉन कोहेरेंट का ये है कि ये इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लोकल ऑसिलेटर। एप्लीकेशन की बात करें तो इन टेलीविजन लाइन मॉडम यूज्ड FSK टू ट्रांसमिट 300 बिट पर सेकेंड एट टू फ्रीक्वेंसीज 1070 हर्ट्ज एंड 1270 हर्ट्ज। अब देखें टेलीफोन लाइन जो है वहाँ पे जो मॉडम यूज़ होता है FSK टू ट्रांसमिट, उसमें आप 300 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट कर रहे होते हैं दो फ्रीक्वेंसीज पे, जो कि 1070 है और 1270 है। अच्छा जी, अब ये है फेज शिफ्ट किंग PSK। so the definition of this it is that carrier phase is varied according to the amplitude of message signal। मीन्स अब हम कैरियर का फेज़ जो है उसको मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिहाज से चेंज करेंगे। अगर हम PSK वेवफॉर्म की बात करें तो सपोज वी हैव m(t) लाइक दिस हेयर, plus volt is assigned to 1 bit and minus V is assigned to 0 bit। so C(t) will be our carrier। और अगर अब आप देखो तो हमारा जो PSK सिग्नल होगा उसमें जब 1 से 0 बिट की तरफ आप जा रहे हैं या 0 से 1 बिट की तरफ जा रहे हैं तो वी विल द फेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल बी चेंजिंग। मतलब जहाँ पे आपका फेज़ जो था वो आगे जाना चाहिए था लेकिन बिट ट्रांजिशन की वजह से आपका फेज़ चेंज हो गया है। इसी तरह से जब 0 से 1 बिट की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन है जिसकी वजह से फेज़ चेंज हो जाएगा। इन दिस वे PSK विल वर्क। अगर हम PSK मॉड्यूलेशन की बात करें, है वी हैव m(t) which is our digital data, then we have carrier which is cos omega CT। both will be multiplying with each other and then at the output we will be getting PSK वेवफॉर्म। अच्छा, अब डीमॉड्यूलेशन की हम बात करें तो डीमॉड्यूलेशन जो है इसकी उसमें हम सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन की बात करें। इन सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन PSK सिग्नल विल बी मल्टीप्लाइंग विद cos omega CT। दिस इज़ लोकली जनरेटेड ऑसिलेटर एंड देन एट द आउटपुट वी विल बी हैविंग y(t)। अब y(t) क्या है? ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की। दिस इज़ प्लस माइनस m(t) cos omega CT और ये आपका कैरियर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर ओमेगा CT में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 omega CT over 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये आपका प्लस माइनस m(t) over 2 प्लस माइनस m(t) cos 2 omega CT है। दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस हाई फ्रीक्वेंसी we will be using low pass filter, and low pass filter will remove this high frequency, and then comparator will be used to get m(t) out of plus minus m(t). So if we talk about advantages of PSK, then it is better than ASK and FSK, and bandwidth is better than FSK, and it has better noise immunity, and data rate is also better than FSK. However, it has also its own disadvantages, like we were using coherent detection in FSK in PSK, and there is no availability of non-coherent detection. So no non-coherent detection, therefore the circuit is quite costly because we are using coherent detection where we have to generate local oscillator carrier, and this will increase the cost of circuit. If we talk about applications, then it is generally used in digital communication. Means it is quite extensively used in digital communication, and its different variants are also used in digital communication। अच्छा, जैसा कि हमने देखा था कि जो PSK था उसका प्रॉब्लम ये था कि उसमें नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन यूज़ नहीं की जा रही थी, बल्कि हम सिर्फ कोहेरेंट डिटेक्शन यूज़ कर रहे थे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग प्रपोज की गई है। इन PSK इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। टू परफॉर्म नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ PSK we use differential phase shift keying. It reduces cost of circuit which comes because of coherent detection. Means to overcome this problem of PSK, we have proposed DPSK, and the advantage of DPSK is that it does not use any
local oscillator for detection, but it is able to perform non-coherent detection, and thus we can reduce the cost of circuit. So if we talk about DPSK transmitter, then here we have theta k, and then it is here we have 1 bit delay, and it is the out and here it is theta k minus 1, और जो आपकी कंपैरेटर इसकी आउटपुट है वो इसको डी के कह देंगे। यहाँ पे थीटा के और थीटा के माइनस 1 इन दोनों को आपने एक्सऑर कर दिया है। अब ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपका थीटा के है जो आपकी प्रेजेंट बिट है, और ये आपकी 1 बिट डिले के साथ आ रही है। इन दोनों का एक्सऑर लेंगे, इनको पोलर में से पास करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पोलर वेव फॉर्म आ जाएगी। बाद में कॉस ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे एंड वी विल गेट दिस ट्रांसमीटर। अच्छा, अब आप देखें जो एक्सऑर होता है उसमें जब आपके सेम बिट्स आती हैं तो यू गेट 0, और जब डिफरेंट बिट्स आती हैं तो आपको 1 मिलता है। जब आपने यहाँ पे उसका टेबल बनाया, सेम बिट्स आई तो डीके पे आपको 0 मिल जाएगा, और जब डिफरेंट बिट्स आएंगी देन यू गेट 1, एंड सेम डिफरेंट बिट्स 1 और सेम बिट्स आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। DPSK is basically based on differential coding. So let's have a look that what is differential coding. अच्छा, अब differential coding में समझने की बात ये है कि अगर आपकी next bit 1 है then change polarity of output, and if next bit is 0 then do not change the polarity. अब देखें ये आपके पास वेव फॉर्म है 1 0 1 1 0 0 1 1 0। हेयर वी हैव प्लस a फॉर 1 एंड माइनस a फॉर 0। अच्छा, अब अगर हमने इसका डिफरेंशियल कोडेड वेव फॉर्म बनानी हो इस डाटा की, देन हाउ कैन वी गेट द डिफरेंशियल कोडेड वेव फॉर्म। हमने ये दोनों रूल्स जो हैं उनको माइंड में रखना है। 1 बिट का क्या मतलब है, 1 बिट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बिट क्या है, 0 है, देन डू नॉट चेंज द पोलैरिटी। अब जब नेक्स्ट बिट 0 है तो हम जब 1 पे थे तो हमने उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करनी, प्लस a पे थे, हमने प्लस a के साथ कंटिन्यू करना है। जब अब हमने देखा कि नेक्स्ट बिट जो है वो 0 आ गई है, इट मीन्स नेक्स्ट बिट 1 आ गई है, इसका मतलब है नाउ वी हैव टू चेंज द पोलैरिटी। वी वर एट प्लस a, सो नाउ वी विल शिफ्ट टू माइनस a। अब फिर अगेन 1 बिट आ रही है, नेक्स्ट बिट इज़ 1, सो वी विल change the polarity, and now next bit is 0, so no change in polarity and we will be at the same level. Then again next bit is 0, so we will be at the same level. Now next bit is 1, so polarity will be changed. Next bit is 1, so polarity will be changed. Next bit is 0, so there is no need to change the polarity. So in this way we will get differential coded waveform. अच्छा जी, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट DPSK रिसीवर। वहाँ पे हमने देखा था कि DPSK ट्रांसमीटर में वी वर यूजिंग 1 बिट डिले। सो हेयर एट द रिसीवर वी आर अगेन यूजिंग 1 बिट डिले। सो AK cos ओमेगा CT हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। 1 बिट डिले के साथ इसको मल्टीप्लायर में डालेंगे, आउटपुट पे हमें y ऑफ t मिल जाएगा, और यहाँ पे LPF से पास होके हमें z ऑफ t मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने हाउ हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, सेम पोलैरिटी ऑफ इनपुट एंड डिलेड सिग्नल। अब पॉसिबल है कि यहाँ पे जो पोलैरिटी आ रही है वो 1 बिट के साथ डिले हो जाए, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 2 पोलैरिटीज़ आ रही हैं। तो अब या तो आपकी 1 बिट डिले के बाद भी सेम पोलैरिटी रहेगी या 1 बिट डिले के बाद डिफरेंट पोलैरिटी रहेगी। अब अगर हमारी सेम पोलैरिटी होगी तो इस तरीके से AK cos ओमेगा CT मल्टीप्लाई हो जाएगा AK cos ओमेगा CT से, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे हमें 1 बिट डिले के साथ यही वेव फॉर्म मिलेगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सेम पोलैरिटी सिग्नल। और आपने यहाँ पे देखा AK स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, यहाँ पे AK स्क्वायर ओवर 2 cos 2 ओमेगा CT होगा, LPF से पास होके AK स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। बट इफ़ वी have opposite polarity of input signal and delayed signal, then we will be getting a signal like this, and this cos 2 omega CT will be blocked by LPF, and we will be having minus AK square over 2 as the output of demodulator. So the advantages of DPSK are listed here. The first one is non-coherent detection is possible, then cost is less, no oscillator, no cost, and then circuit complexity is also less because we are not using any kind of oscillator. So here the main point is usage of local oscillator. At receiver we don't need to use local oscillator, as we have seen on the previous slide that there was no oscillator or locally generated carrier at the receiver, which will result in less cost and less complexity.
Now the drawback is it is quite noisy. And that's the main drawback of DPSK. Now let's move to another variation of PSK, which is quadrature phase shift keying. You have to keep in mind that DPSK and QPSK, they both are basically different variations of PSK. These are, you can say, different classifications or variants of PSK waveform, which comes under angle modulation of digital communication system. So QPSK is a form of PSK where two bits are modulated at once. अब आप देखें कि QPSK में हमने बेसिकली दो बिट्स को रखना है. अभी तक हमने PSK की जो वेवफॉर्म देखी थी वो बेसिकली बाइनरी BPSK थी, where only one bit was modulated at once, but here in QPSK we are basically two bits to be modulated at once. It selects one of four possible carrier phase shift. अब हमारे पास 2⁻², उसके हिसाब से 4 possible combinations हो सकते हैं carrier shifts के. The first one is 0 degree, then 90 degree, then 180 degrees, and 270 degrees. In BPSK only two carrier phases are possible. The first one was 0 degree and the other was 180 degrees. So 2⁻1 मतलब यहाँ पे दो possible phase shifts थे. लेकिन जब आप QPSK की बात करते हैं, here we have 4 possible phase shifts. It allows the signal to carry twice as much information as ordinary PSK using same bandwidth, because now we are modulating two bits at once. So it means we are basically transmitting more number of bits by using the same bandwidth as compared with BPSK. अच्छा जी, दिस इज़ योर QPSK मॉड्यूलेटर. और ये आपका जो मॉड्यूलेटर है, इट इज़ मोर और लेस लाइक क्वाम. अगर आपको क्वाम की ब्लॉक डायग्राम याद हो तो उसी से मिलता जुलता है. ये हेयर वी हैव डिजिटल स्ट्रीम, एंड द interesting thing here is that we have a bit splitter here. Even bit will be transferring to upper branch and odd bit will be transferring to lower branch. So यहाँ पे अब क्या है, BPSK मतलब यहाँ तक आपका क्या काम था कि आपने बेसिकली दो बिट्स इकट्ठी उठानी है. तो उसके बाद एक बिट आपने ऊपर भेज दी, एक बिट नीचे भेज दी. तो यहाँ पे अब आपका बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का सर्किट जो है वो वर्क करेगा. यहाँ पे आपके पास एक लोकल ऑसिलेटर से कैरियर आ जाएगा. वही कैरियर जो है वो शिफ्टिंग के बाद 90 डिग्री की शिफ्ट के बाद इस क्वाड्रेचर ब्रांच में चला जाएगा. और आउटपुट पे आपके मतलब यहाँ पे भी आउटपुट पे आपके पास इन फेज ब्रांच में भी यू विल गेट वन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड इन क्वाड्रेचर फेज यू विल बी गेटिंग अनदर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड देन एट द आउटपुट आफ्टर समेशन you will get QPSK output. So this is basically a brief introduction related to QPSK modulator. We are not going into detail of QPSK demodulator, because in your book this thing is covered up to modulator, and there is no mentioning of QPSK demodulator. So we are also stopping this topic here, and in next slide we will be starting multiplexing. अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन अगर हम देख लें तो मल्टीप्लेक्सिंग, या जिसको मक्सिंग भी कहते हैं, इज़ बेसिकली अ वे ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स और स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ कम्युनिकेशन लिंक एट द सेम टाइम इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सिग्नल. मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. मतलब अब आप देखें यहाँ पे हेयर वी हैव मक्स, एंड दिस इज़ डाटा फ्रॉम मल्टीपल यूज़र्स. सो द मेन पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लेक्स is to combine this data and make it one complex or composite signal, and then this composite signal is transmitted. The receiver covers the separate signals, a process which is known as demultiplexing, and then demux perform demultiplexing, and it separates the combined data and transmit it to the individual users. So in muxing we combine the data streams. मतलब आपने muxing का main purpose क्या है कि आपने मल्टीपल यूज़र्स का डाटा एक ही सिग्नल में कंबाइन करना है, ताकि उस कॉम्पोजिट सिग्नल को आप आगे ट्रांसमिट कर सको. इसका मेन एडवांटेज ये है कि एट द सेम टाइम यू कैन ट्रांसमिट डाटा ऑफ मल्टीपल यूज़र्स. और डीमक्सिंग क्या होगी कि हम रिसीवर साइड पे सारा डाटा जो एक कंबाइंड सिग्नल हमें मिल रहा है उसको हम सेपरेट कर देंगे, और वो और उसके बाद वो यूज़र्स को ट्रांसमिट किया जाएगा. तो हम चैनल जो कि एक चैनल है उसमें मल्टीपल यूज़र्स का डाटा मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से ट्रांसमिट कर सकते हैं.
अच्छा, अब एक एडवांटेज सॉरी, जो एक कह लें कि हमारे पास कैटेगरी है मल्टीप्लेक्सिंग की, इट इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप डिफरेंट टाइम स्लॉट जो है वो असाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास एक ही यूज़र का डाटा है, बी दूसरे का है, सी तीसरे का है और डी चौथे का है। अब आप क्या करेंगे कि पहली स्लॉट ए को देंगे, ठीक है, दूसरी स्लॉट बी को देंगे, तीसरी स्लॉट में आपके पास सी का डाटा आएगा, चौथी स्लॉट में डी का आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट में आप दोबारा से ए का डाटा ट्रांसमिट करेंगे, फिर बी का करेंगे, सी और डी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हमने अपने डाटा को, मतलब चैनल को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया और वन बाय वन हमने इस कॉम्पोजिट सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे। ये डाटा फ्लो है। और जब आप डी मार्क्स क्या करेगा कि यहाँ से फर्स्ट टाइम स्लॉट से फर्स्ट यूज़र का डाटा उठाएगा, सेकंड टाइम स्लॉट से सेकंड यूज़र का उठाएगा, थर्ड टाइम स्लॉट से सी डाटा उठा लेगा और फोर्थ टाइम स्लॉट से डी उठा लेगा। तो इस तरीके से हमारा मक्स और डी मक्स जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग काम करेंगे, कि जिसमें हमने डिफरेंट टाइम स्लॉट जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को असाइन की हैं। The other type of multiplexing is frequency division multiplexing and it works on frequencies. अब आप देखें, हम बेसिकली कहें यूज़र 1 है, यूज़र 2 और यूज़र 3। अब FDM मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं असाइन कर देंगे। अब जब मतलब आपने मॉड्यूलेट किया है इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, अब ये फ्रीक्वेंसी, इसके लिए आप यूज़र 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 यूज़ करेंगे, यूज़र 2 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 और यूज़र 3 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 यूज़ करेंगे। मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास डिफरेंट वेवफॉर्म्स आ जाएंगी, मॉड्यूलेटेड ऑन टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, एंड देन हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। सो दिस होल इज़ बेसिकली मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे यूज़र्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ मॉड्यूलेट करेंगे और उसके बाद इनको कंबाइन कर दिया जाएगा और ये कॉम्पोजिट सिग्नल आ जाएगा। दिस कॉम्पोजिट सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मीडियम and the input signals may be either digital or transmitted. A digital signal must be passed through a modem. मतलब यहाँ पे अब हमने इसको इस कंपोजिट सिग्नल को ट्रांसमिट करना है और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो डिफरेंट यूज़र्स को शो कर रही हैं। इसी तरह से डी मॉड्यूलेटर पे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ इसको डी मॉड्यूलेट करेंगे, मतलब रिसीवर साइड पे हम इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ डी मॉड्यूलेट करेंगे और उसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे। सो this is all about FDM. So it's all for today's lecture. Thank you.